ہے ہماری فکری اساس اور دینی اساس اور ہماری تہذیب اور ثقافت، کیونکہ ادب اور مذہب کو جدا نہیں کیا جاتا، اردو میں ہے. تو اب سنڈے اسکولز میں، کیونکہ مخصوصاً ہمارے حیدرآباد کے جو بعد میں پاکستان میں جا کر آباد ہوئے مقبول صاحب، وہ اس وقت ٹورنٹو میں، ناظم الدین مقبول اس وقت ٹورنٹو میں تقریباً 300 بچوں کو مفت اردو تعلیم دے رہے ہیں. تو سنڈے اسکولز ہمارے پاس ہیں. اس کے علاوہ کوشش یہ ہو رہی ہے ہماری کہ ٹورنٹو میں ہم یونیورسٹی میں آپ کے اردو کی تعلیم دیں، اور آج سے 6 سال پہلے خود جو ہیومن رائٹ چارٹر تھا اس کا اردو میں ترجمہ کیا گیا اور ہم کو پیش کیا گیا. تو اس طریقے سے آئندہ روشن ہے، لیکن یہ کہ کیا یہ جگنو کی روشنی ہے وہ مجھے نہیں معلوم. سوال مختصر کریں. ہندوستان میں اردو کی بڑے پیوست ہے اور اردو کا جنم بھومی ہندوستان ہے، تو یہاں جو جڑیں اس کی ہیں وہ کھوکھلی ہو رہی ہیں. تو ایسے میں کیا ان بستیوں سے ہم امید لگائے رکھیں کہ وہاں اردو کا مستقبل درخشاں ہوگا ان بستیوں میں جو باہر، کیونکہ اس کی جڑیں ہندوستان میں مضبوط ہونا چاہیے. اور دوسری اہم بات یہ ہے، کیونکہ آپ ڈاکٹر بھی ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ آزادی کے بعد ہندوستان میں اردو کا بہت معاملہ مچ رہا ہے کہ اردو مر رہی ہے، ختم ہو رہی ہے. کیونکہ زبان کا کلیہ یہ ہے کہ زبان ایک نامیاتی شے ہے، کبھی نہیں مرے گی. میرا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اردو جو اس معیار پر ایک تہذیبی اور ثقافتی اور علمی اور ادبی زبان ہے، وہ گھٹ کر اپنے درجے سے ایک بولی پر آ جائے گی. اگر ہم اردو کے رسم الخط کی حفاظت نہ کریں، اگر ہم اردو کے ساختیات کی اور لسانیات کی جو ضروری اصلاحات ہیں اس پر توجہ نہ دیں، تو یہ زبان، کیونکہ ہمارے پاس چوائس نہیں ہے، اس وجہ سے کہ ہم کو تو اسی زبان میں بات کرنا ہے، تو یہ زبان صرف بولی بن کر، یعنی کانوں کی زبان نہیں بلکہ اس میں دوسری زبان کے الفاظ ایسے مل جائیں گے جو لوکل زبان ہوں گے، تو وہ ایک بولی بن کر رہے گی ہمیشہ کے لیے. لیکن یعنی وہ اپنا پورا پریسٹیج جو اس کی وقار ہے، جو اس کا وقار ہے، وہ سب کھو دے گی. اب ہماری جو اردو کی جو بستیاں ہیں، اگر اس کا گہوارے اردو سے تعلق نہ رہے گا تو یہ بستیاں بہت جلد خشک ہو جائیں گی. اس وجہ سے کہ اب ہم جو اس کو تر و تازہ رکھ رہے ہیں، کیونکہ ہمارا کوئی نسبتی آپ کے علاقے مندی اردو سے ہے، لیکن میرے آنے والی 2 آئندہ نسلوں کے لیے یہ کیفیت نہیں ہے. اور کیونکہ زبان ضرورت کے تحت باقی رہتی ہے اور اردو کی نئی بستیوں میں اردو کی ضرورت نہیں ہے، اس وجہ سے میں نہیں سمجھتا بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ یہاں کا تجربہ اور یہاں کا جو مشاہدہ ہے اس سے ارتباط پیدا کریں اور اس سے آپ کے جو ہے اپنے وہاں کی بستیوں کی آبیاری کرتے رہیں. تو دونوں سوال آپ کے عمدہ ہیں. اردو کو بولی بننے سے بچائیں اور اردو کو کی نئی بستیوں کی ممکنہ امداد کریں تاکہ ہم اپنی اس جد و جہد کو جاری رکھ سکیں. اور میرا جو ہندوستان اور پاکستان کا جو بیشتر آپ کے کیا کہتے ہیں دورہ رہتا ہے، اس میں بہت سی چیزیں یہاں سے سیکھ کر جاتا ہوں اور وہاں پر اس کو اپنی حیثیت اور اپنی ہمت کے لحاظ سے اس کو وہاں پر عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرتا ہوں. لیکن بہرحال یہ بہت بڑا عظیم کام ہے اور اس کا قصد بھی کرنا عبادت ہے، میں سمجھتا ہوں. جناب رحیم الدین کا موضوع بلکہ ہندوستان کی ہر زبان کو خطرہ ہے. تعلیم اردو دینے کی ایک تحریک ایسی شروع کرے اور مجھ میں دوسری زبانوں والوں کو شریک کرے، تاکہ حکومت یہ جو کر رہی ہے کہ مادری زبان میں تعلیم بند کرتی ہے اس کا اعادہ ہو. اور یہ بہت ضروری تحریک ہے اور مسلمانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کے 75% مسائل بلکہ اس سے زیادہ مسائل ایسے ہیں جو مشترکہ ہیں. جہاں مشترکہ مسائل ہیں وہاں مسلمانوں کو دوسرے اقوام کے ساتھ، دوسری زبانوں کے بولنے والوں کے ساتھ مل کر ایک قومی
तहरीक शुरू करनी चाहिए और ये कौमी तहरीक के लिए बहुत ही अच्छा मौजूद है और बहुत अच्छी बहुत शुक्रिया रहीम साहब। उम्दा तरीन मैं समझता हूँ उम्दा तरीन आपके नसीहत है कमाल साहब की, और मैं लफ्ज़ ब लफ्ज़ आपके जो है आपके ख्याल की तायद करता हूँ। ख़वातीन हज़रात, जिससे पहले के अगला सवालों में सदर इजलास की इजाज़त से आप तमाम के इल्म में ये बात कहना चाहूँगा, हमारे दरमियान मौलाना महफूज़ रहमान फ़ारूक़ी साहब तशरीफ़ फरमा हैं जो औरंगाबाद से तशरीफ़ लाए हैं। आपको अमीर शरीयत महाराष्ट्र के अलावा रुकन मुस्लिम पर्सनल बोर्ड होने का एजाज़ है। आप डॉक्टर अहमद दीदात और अली मियाँ के रूहानी इलाज का शर्फ भी रखते हैं। मैं उन्हें हमारे मौलाना आज़ाद क्लब हैदराबाद की जानिब से खुशामदीद यहाँ कहता हूँ। और अगला सवाल प्रोफेसर रेहाना सुल्तान करने वाले हैं। उससे पहले मैं एक जो तहरीर यहाँ पहुँची है डॉक्टर साहब के लिए वो सुना दूँ। आपकी तकरीर की लताफत और चाशनी से लुत्फ़अंदोज़ होना अलग बात है। आपकी तकरीर की लताफत और चाशनी से लुत्फ़अंदोज़ होना अलग बात है, लेकिन मैं आपके तवज्जुह से जानना चाहता हूँ कि यहाँ हाज़रीन में से कितने लोगों के बच्चों का ज़रिए तालीम उर्दू है? हाथ उठाएं। आइंदा जब ये सवाल होगा तो शायद हर तरफ से एक हाथ उठेगा। बस इसकी फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू है, इसमें हमारा फरमाइए डॉक्टर साहब। अभी आपने उर्दू के तहफ़्फ़ुज़ के ताल्लुक़ से 3 बुनियादी बातों का ज़िक्र किया है। एक बुनियादी तालीम का, दूसरे इसको नस्कर यहाँ पर जो दीनी मदारिस हैं उर्दू का चिराग जलाए हुए हैं और यहाँ का जो ज़रिए तालीम उर्दू होता है, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक उर्दू की बुनियादी तालीम मिल रही है। लेकिन हमारे पास सवाल ये होता है कि क्या बुनियादी तालीम से हम उर्दू का तहफ़्फ़ुज़ कर पाएंगे? ये ज़रूरी होगा कि हमको, जबकि यहाँ उर्दू यूनिवर्सिटी का भी क़याम अमल में लाया जा चुका है, तो क्यों ना यहाँ पर उर्दू के लिए दारुल तर्जुमे का जो पिछले कामयाब तर्जुमा किया जा चुका था, तो उस तरह का काम क्यों नहीं हो रहा है? ट्रांसलेशन ही क्यों ना हो, लेकिन उर्दू में तर्जुमे के काम को ज़्यादा हमको तरजीह देने की ज़रूरत है। और जब तक आला तालीम में उर्दू का रिवाज आम ना होगा, हम उर्दू का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पाएंगे। तो मैं डॉक्टर साहब से इस बारे में ख़ास तौर से तवज्जो चाहूँगी कि उर्दू के फ़रोग़ के लिए क्या इब्तदाई सतह पर काम होना ज़रूरी है या आला सतह पर भी होना ज़रूरी है? और आला सतह में ख़ास तौर से बेशक साइंस की ज़बान में ना हो, लेकिन समाजी उलूम से, क्योंकि अदब का भी समाज से बहुत गहरा ताल्लुक़ होता है, तो समाजी उलूम का कम अज़ कम उर्दू में राबिता होना चाहिए और समाजी उलूम में ज़्यादा से ज़्यादा आला तालीमी मौक़ात उर्दू में अगर फराहम किया जाए तो बेहतर तौर से उर्दू का तहफ़्फ़ुज़ होगा। और एक बात ख़ास तौर से मेरी ये है, जैसे कि अभी मखदूम चेयर के बारे में बात हो रही थी, यहाँ न सिर्फ मखदूम बल्कि ये अलमिया रहा है कि जुनूब वालों को हर तरीक़े से नज़रअंदाज किया गया है, चाहे शायर हो कि अदीब हो, चाहे वो इनक़लाब पसंद तहरीक का बानी हो या कोई भी हो। इस पर हमको ख़ास तौर से आप जैसे मुतहरिक अफराद को खुसूसी तौर से एक ऐसी मुहिम चलाना चाहिए कि यहाँ के अदीब और शुरा को और यहाँ के मुख्तलिफ जो समाजी कारकुन हैं या दूसरे किन हैं जिन्होंने कौम और मिलत का काम किया है और उर्दू के नाते से जिसका ख़ास ताल्लुक़ रहा है, उसके लिए हम एक, जैसे मैं शुजात अली राशिद से भी इस बात की दरख्वास्त करूँगी कि वो इस क्लब के ज़रिए से इस बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। शुक्रिया। मुस्तक़बिल की तशवीश है। उर्दू के मुस्तक़बिल से हमें अफसरदगी या मायूसी नहीं, मायूसी इस वजह से नहीं है कि हमारे पास कोई और रास्ता ही नहीं है, उर्दू रहेगी। तशवीश इस वजह से है कि जो विक़ार उर्दू को अता हो चुका था 1 सदी क़ब्ल, क्या वो उससे छिन जाएगा? आपने बिल्कुल सही फरमाया, लेकिन बुनियादी तालीम का मसला इतना अहम है कि इस वक्त अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जो चीज़ को हम 100 साल पहले हासिल कर चुके थे उसको फिर हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। बाज़ वक्त ज़माने के इनक़लाबात से ये मसाइल पेश आते हैं। हमारे बुज़ुर्गों ने कुछ इस तरह की गलतियाँ की हैं। देखिए, ख़ताए बुज़ुर्गां गिरफ्तन ख़तास
मैं इसको नहीं मानता। अगर ये मसले पर हम रहते तो आज मेडिकल इस मुकाम पे नहीं होता। खता अगर है तो जदीद नस्ल को इजाज़त दी जाए कि वो बांगे डोल इस चीज़ को कहे कि ये गलत है। गलत को हमारे पास बहुत से तजुर्बे हैं, उसमें मेरे पास वक्त नहीं है कहने का, लेकिन मैं अर्ज़ करूँ आपके कि हमारा तख्लीकी सरमाया उर्दू अदब का तकरीबन ख़त्म होता जा रहा है। इस वजह से कि इसकी बुनियाद वहाँ पर 1930 में जब सीमा अकबराबादी जैसे शायरों से पड़ती है कि वो ये कहते हैं मैं नहीं चाहता हमारे मुशायरों में नौजवान और मुब्तदी शोरा को शामिल किया जाए। ये मेरे लिए सबसे बड़ी तकलीफ दे बात है, इस वजह से कि आज सीमा अकबराबादी हमारे दरमियान में नहीं है। आप देख रहे हैं, मैंने एक छोटी सी तहकीकी काम किया है कि उस वक्त तकरीबन यानी 19वीं सदी में तकरीबन 30% लोग साहिब बयास होते थे, 1 से लेकर 1000 शेर रखते थे। आज 400 मिलियन अगर हमारे उर्दू जबान के लोग हैं तो कितने मिलियन हमारे पास शायर हैं? हमारे पास तो 20,000 भी इस वक्त शायर नहीं है। तो हमारा परसेंटेज इस वक्त जो है तकरीबन 0.001 से भी कम हो गया है, जबकि अंग्रेजी जबान में 35% बच्चे जो हैं शायर हैं। स्कूलों में हर बच्चा शेर लिखता है। यहाँ पर शेर अगर इसने नौजवान शायर ने यहाँ पर आके पढ़ा तो आप वो बड़े शायर को देखिए, गर्दन नीची है और आपके ना किसी किस्म की उसकी हिम्मत अफजाई है ना तो वो बच्चे आते हुए घबराते हैं तख्लीकी बस अफसाना हो या तो ये तो तख्लीकी दुनिया का मसला है। तो हमारे बुजुर्गों ने जो काम किया है हमको उस कामों से आपके जो है सबक सीखना चाहिए। तख्लीक जिस कौम में नहीं होगी वो कौम नौजवानों को आगे लाना चाहिए। मैं देखता हूँ ये सिंपोजियम में जाता हूँ, ये नजरों को देखता हूँ कि मेरे जवान कहाँ पर हैं, नहीं हैं, वही आपके पुराने घिसे पिटे अफराद। और मैं जब मकाला शुरू करते हैं तो मुझे मालूम होता है कहाँ से पढ़ रहे हैं। ये गोंद और खैंची की तहकीक के जो है बड़े बड़े नाम, इन लोगों को मुझे सरोकार होता है। तो मैं बड़े अफसुर्दा और आपके बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। तो मैं जब शाम में पहुँचता हूँ अपने कमरे में तो मैं कहता हूँ मैंने क्या पाया, मेरी नौजवान नस्ल कहाँ थी, मेरी तख्लीकी ग्रुप, उनको तो आने ही नहीं दिया जाता, उनको आने ही नहीं दिया जाता। तो हमको अपना मिजाज बदलना पड़ेगा, हमको अपना रवैया बदलना पड़ेगा, हमको उर्दू की सियासत बदलनी पड़ेगी, हमको फिर वही एजाज यूनिवर्सिटियों को दिया जाना पड़ेगा। मैं चाहता हूं इस पोडियम पर जो बैठे वो पूरे अदीब हों। मैं 7 महीने पहले जब ये कुल्लियात गालिब मेरी तेहरान में हुई तो आप देखिए कि इंडियन एम्बेसडर भी आता है, पाकिस्तान एम्बेसडर भी आता है, उनके प्राइम मिनिस्टर भी आते हैं, सब लोग जो हैं आपके नीचे बैठे हुए हैं। ऊपर जो हैं डॉक्टर हसन हैरी हैं जिन्होंने आपके सोमनाथ ख्याल गालिब पे लिखा है, मैं हूं या कोई और दूसरा शख्स है जिसने अदब पर काम किया है। हमको सीखना चाहिए उन लोगों से। अच्छी चीज जो है अदब का अगर मुकाम है तो यहाँ पर लाइए, अगर पार्लियामेंट का मसला है तो उन लोगों को बिठाइए, अगर समाज का कोई जलसा है तो समाजी रुकन को बिठाइए। हमको क्या जरूरत है कि किसी शख्स की मदह इस वजह से करें कि ये सफेद लिबास पहनने वाले तो सियाह वर्क हैं उर्दू के लिए। हमको क्या जरूरत है कि उन जालिमों की कोशिश करें जिन्होंने उर्दू अदब को दफन कर दिया। आपको मैंने लफ्ज़ बलफ्ज़ एक बहुत बड़े आदमी का खत सुनाया, जो तकरीर सुनाई, तो आप खुद फैसला कर सकते हैं, क्योंकि हर शख्स का जो जहन है वो सबसे बड़ा जस्टिफाइड आपके जो है इंसाफ है वो खुद मैंने सिर्फ पढ़ के मैं तो कह रहा था कि ये हमारे उर्दू के अदीब और शायर और ये चीज़ें। तो मैं ममनून हूँ आपके इन सवालात से। इब्तदाई तालीम ज़रूरी है, ये मेरा दर्द है। अब ये है कि आपके जो है रोम के पीटू जिगर को मैं अब क्या कर सकता हूँ सिवाय इसके कि आपके साथ हम नवा हो जाऊँ। हो चुका है बहुत। यहाँ एक सवाल और आया है, तहरीर आई है। इसमें एक साहब ये जानना चाहते हैं कि आपने यहाँ कहा कि उर्दू मर नहीं रही है, लेकिन वो ये जानना चाहते हैं कि आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे उर्दू के साथ जो सलूक हो रहा है, जिस तरह से उर्दू का तलफ़्फ़ुज़ पेश किया जाता है, उस सिलसिले में डॉक्टर साहब क्या सोचते हैं? बहुत उम्दा सवाल है। आप लोगों में से अगर कोई, देखिए आप उम्मीद ना रखें कि कोई अदीब या कोई प्रोफेसर ये काम करेगा। आप लोगों में से कोई ये बता दीजिए कि कुछ जब हम लिखें, जैसे हम आदाब लिखें, बरादरम हसन आदाब, तो आप अगर हमको तायुन कर दें कि कुछ के लिए कौन से अल्फाज हम इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारी ज़बान के जो कुछ रोमन में जब, क्योंकि अभी तो हमारे पास कुछ वक्त है
کہ हम इसको उर्दू के रस्मुल ख़त में लाएं। उसके लिए मैं समझता हूँ हमको अभी 10-12 साल इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन इस 10-12 साल तक ये कारवान इंटरनेट का या ईमेलिंग का रुक नहीं सकता। तो अगर कोई आप लोग किसी ने ये एहसान हम पर कर दें कि बाज़ अल्फाज का जो तलफ़ुज़ है उसके लिए ये अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं, एस की जगह सी के जगह एच, अगर उसका एक नज़रिया, मेरे पास सिर्फ एक आर्टिकल है 37 साल पुराना जिसमें ये बताया गया है कि उर्दू का इमला रोमन में, और वो ज़्यादा मुझे जालिब और नहीं लगा। लेकिन अगर कोई करना चाहते हैं तो वो आर्टिकल की पूरी फोटोकॉपी मैं दूंगा, आप उस आर्टिकल को पूरा पढ़िए और उसके बाद से अपने नज़रिए से ये बताइए कि मैं जो ख़त लिख रहा हूँ, आपको ईमेल कर रहा हूँ रोमन में, उसमें जो बाज़ मसाइल आते हैं उसको किन अल्फाजों के साथ, अगर ये हम एक छोटी सी डिक्शनरी 20 सफ़े की या 25 सफ़े की या 50 सफ़े की कर लें तो ये बहुत बड़ा एहसान होगा और इंटरनेट से जुड़ जाएगा। और वो काम चल रहा है, क्या कहते हैं आपके रस्मुल ख़त के में खुतूत लिखने का, लेकिन मेरा प्रिडिक्शन ये है कि 2020 तक अभी हम इस मौक़िफ़ में नहीं आएंगे कि हर शख्स एक दूसरे से जब कम्युनिकेट करेगा, इर्तिबात करेगा, तो हम उर्दू के रस्मुल ख़त में वो कर सकें। इस वक्त इस 8 साल में इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। एक आध नौजवान बैठ सकते हैं, मैं वो आर्टिकल की फ़ोटोकॉपी आपको दूंगा, वो तन्हा आर्टिकल है, वो तन्हा आर्टिकल है मेरी दानिश में जो लिखा गया है, उसको आगे बढ़ाइए और उसके बाद एक छोटी सी डिक्शनरी हो जाएगी और वो पूरा इंटरनेट के जरिए जो है पूरी दुनिया में आपके जो है वो होगा, और उसके बाद हम बहुत आसानी के साथ उन्हीं अल्फाज को उन्हीं आपके जो है रोमन अल्फाजों में, रोमन हरूफ में पेश कर सकेंगे। सदर साहब की इजाज़त से सिर्फ 2 मुख्तसर सवाल, 2 हाज़रीन यहाँ पर मुख्तसर सवाल करें और सदारती छोटे मदरसों से, फिर वहाँ पर जो है ना आपको कहाँ जो है बच्चे मिलेंगे, तो बच्चों को पहले उर्दू तालीम से जो है फीडबैक दीजिए ताकि हम यूनिवर्सिटी तक पहुँच सकें। ये सिर्फ तजवीज़ है, सवाल नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया। बेशुक्रिया सदर साहब। आखिरी सवाल मामूल कादिम महाराष्ट्र में मालेगांव में आज से 42 साल पहले मैंने उर्दू का स्कूल शुरू किया। मैं खुद उर्दू से तालीम हासिल किया हूँ, मैट्रिक किया है मैंने, यहीं से किया। महाराष्ट्र में उर्दू स्कूल शुरू किया, 42 साल से उर्दू स्कूल चला रहा हूँ। मेरे बच्चे तमाम उर्दू मीडियम से पढ़े हैं, वो कंप्यूटर में, इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उर्दू से पढ़कर बुनियादी तालीम। तो ये उर्दू करने का काम है, तकरीकों का काम है। आलमी उर्दू का अल्फाज में भी ये सवाल उठा था, आप भी मौजूद थे उसमें। और रस्मुल ख़त के ताल्लुक से मैंने आपसे सवाल किया था। रस्मुल ख़त का मामला यह है, फिल्मी दुनिया के एक शायर 30-35 साल पहले उन्होंने बॉम्बे में उठाया, इनका रोजी रोटी से जुड़ा था मामला। गाने वाले और गाने वाले और तमाम हिंदी वाले थे। उन्होंने ये कहा कि उर्दू का रस्मुल ख़त आसान कर दिया जाए और देवनागरी में कर दिया जाए। ये बात उस वक्त उठी थी, बड़ी शिद्दत से उठी थी। उसके बाद वो बात खत्म हो गई, लेकिन ये बार बार रस्मुल ख़त का मसला क्यों उठाया जाता है? आलमी उर्दू कानफ्रेंस में भी बात आई थी, मैंने उस वक्त भी टोका था, आज भी एक बात आई है, बार बार होती है। रस्मुल ख़त का मामला खत्म हो जाना चाहिए। आप कितनी ज़बानों में उसको करेंगे? तुर्की का मामला है, तुर्की ज़बान का, उसको क्या लैटिन में खत्म हो गया। तो कितनी दुनिया की ज़बानों में आप उसको रस्मुल ख़त बदल। तो उर्दू का जो है इतनी मुश्किल भी नहीं है फारसी रस्मुल ख़त, और ना कठिन है, आसान है। रह गया ये कि उर्दू के ताल्लुक से ये करने का काम है तकरीरों का। और इनके मसूद साहब के सवाल से जुड़ा हुआ शोरा का तो तर्जुमा हुआ है, इससे अजीबों का तर्जुमा मुख्तलिफ ज़बान जैसे क़ुर्रतुल ऐन ये जानना चाहते हैं। देखिए वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन एक चीज़ मैं बताऊं, पहले तो नसरी बहुत सी चीज़ें हुई हैं आपकी नज़र में, जी हाँ, अफसाने हों फलां, जी हाँ हज़ारों, जी हाँ, बहुत तर्जुमे हुए हैं, उसकी लिस्ट हमारे पास नहीं है। तर्जुमे नस्र में नज़्म से ज़्यादा हैं, ये आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। लेकिन जो आप ये कह रहे हैं कि हम उर्दू के रस्मुल ख़त पर मुसलसल आपके जो है गुफ्तगू ना करें, सबसे बड़ा ख़तरा तो वही है, सबसे बड़ा मसला तो वही है। आप जाकर नॉर्थ अमेरिका में देखिए कि जो बच्चे जो कर रहे हैं, जो मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, जद्दा का जो इंटरनेशनल मुशायरा था जिसमें हम मौजूद थे, वहाँ का जो MC था
वो मेरे नाम और हर शायर के नाम देवनागरी में लिख रहा था। तो मुझे ताज्जुब ये हुआ कि लहजा तो लखनऊ का, कि गजल कह रहा है और लिख रहा है गजल। तो अब मसला ये है कि रस्मुल खत का मसला बहुत बड़ा मसला है। रस्मुल खत का मसला इस वजह से है कि अगर हम इस पर तवज्जो ना कर सकें, इस पर तो मैं समझता हूं कि जिस तरह से हम पर 5 वक्त की नमाज वाजिब है, हमारे पर तकरीबन 12 घंटे हर 2 घंटे को उर्दू के रस्मुल खत पर सोचना जो है अखलाकी फर्ज हो गया है हम पर। क्योंकि ये सबसे बड़ा उर्दू का खतरा है इस वक्त। उर्दू कानों की जबान आपकी बन गई है तो आप खुशफहमी में ना रहें, दूसरी जबान उसको फौरन ले लेगी। दुनिया में मैंने अर्ज किया कि दुनिया के किसी ममलकत में, ये जो टर्की का जो आपने कहा, टर्की में जो है जो अल्फाज हैं, फर्ज कीजिए कि ईरानी में, ईरानी जो फारसी है, फारसी को आप रोमन में लिख लीजिए, आगा बिया, आगा आओ यहाँ पर, आप इसको रोमन में लिख लीजिए, तेलुगु में लिख लीजिए, हिंदी में लिख लीजिए, वो पढ़ी जाएगी आगा बिया। तो कहेगा लोग आदमी कि ये फारसी है, मगर जब वो जो है देव स्क्रिप्ट में लिखी जाएगी पानी दो, तो वो फिर उर्दू नहीं है। आप समझ रहे हैं इन चीजों को? हमको समझना चाहिए कि हमारे पास एक अजीब सिचुएशन है इस वक्त। अजीब सिचुएशन ये है कि एक जबान दूसरी जबान में जम हो जाएगी। ये दर्द है। काश कि हम इस पर बात ना करें, मगर क्या करें, मगर क्या करें? ये हमारा दर्द है, और इस दर्द को अगर हम दर्दों के साथ, गिला तो अपने लोगों के साथ होता है, ये तल्ख नवाई जो यहाँ पर हुई है, ये जो गुफ्तगू आपके जो तशवीशनाक हुई है, उसकी वजूह